Hello students, welcome to the next lecture on the CSR NET December 2025. Today I will explain you how you can solve the linear programming problem questions with the help of the fully shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now the question is related to the LPP, come from the part B, and it's a very simple question. Your target is to find the value of the objective function z. What is the value of the z? Fine. Again, it's a very simple. If you look about my playlist, CSR UGC NET, you can see the previous lecture was on numerical analysis, Markov chain, calculus of variation. All are the solution of the CSR NET December 2025. Now, how you can solve this question with the help of the 15-second time period? Can you get the answers? Of course you can. If you already watched my previous lecture on the PYQs of the LPP, then you can get the answer in a couple of seconds. How? क्या सीखा था हमने इस लेक्चर में PYQs of the LPP? इस लेक्चर में हमने देखा था your target is to find or you can make 3x1 plus 4x2 from the given constraints. Fine, and that you can easily do. If I multiply the first constant by 1, last constant by 2 and add them, your target becomes z is less than equal to 14. Fine, that means this fourth answer is cancelled. It can never be greater than 14. Clear? एक बात याद रखना बच्चों, it is less than equal to 14 इसका मतलब ये नहीं है कि 14 आपका आंसर हो गया. Optimal answer, it can be less than 14, it may be 11, it may be 13, it may be 12.5, it may be 13.5 and so on. Clear? Now एक ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, मेरा काम है ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देना बस. Now look at the first constant. If I add plus 2x2 on the both side, then expression becomes 12 plus 2x2. अब आपका देखिए x2 is always a positive number, so that number can never be 11. तो ये आंसर हमेशा greater than 12 ही मिलेगा ना आपसे. So that means first option is also cancelled. Look at the second option. If I minus of the x2 on the both side, that becomes 15 minus x2. Fine. क्योंकि हमारा आंसर कभी भी 15 नहीं होगा, that means x2 can never be 0. Fine. Otherwise, let's say assume that x2 will be 0. Fine. क्या ये possible है? Will it be possible? How it is possible? Look at that. Because x2 is my solution. Fine. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया आपको? If you remember my last lecture related to the unique solution of the LPP. This one. Get unique solution of the LPP. एक बार मैं आपको कहूं बच्चों, अगर आपने ये लेक्चर सुन लिया, फाइन, यू कैन गेट द आंसर इन अ रीजनेबल टाइम. तो क्या था वो लेक्चर आपका? हाउ यू कैन सॉल्व देम? यू कैन सी. अगर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन यू गेट एट लीस्ट 2 constraints satisfied as equality. फाइन. तो देखो अगर आप x2 यहां फिल करते हो तो x1 की वैल्यू पहले में से कितनी आ गई? 4. सेकेंड कांस्टेंट में से x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5. बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड. दैट मीन्स x2 कैन नेवर बी 0. अगर x2 कभी भी 0 नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर स्ट्रिक्टली लेस देन 15 आएगा. तो अगेन यू कैन सी फोर्थ ऑप्शन विल बी कैंसल आउट. क्लियर? now when the solution will be optimal. अगर ये ऑप्टिमल कब होगा? जब ये दोनों अपर बाउंड्स मस्ट बी सेम, तभी तो ऑप्टिमल मिलेगा आपको. so that means x2 will be 1. अब ये solution आपका ऑप्टिमल होगा कि नहीं होगा? Again we will substitute in the given equations constants. We will see what is the value of the x1. When x2 is 1, it's a 10/3. If I substitute the second constants, x1 becomes 10 divided by 3. You can see both are my same solution. Therefore 10/3. So therefore 10/3 and 1 is the optimal solution. देखिए स्टेटमेंट में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको अपनी शॉर्टकट ट्रिक से ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी दे दिया मैंने आपको. तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? When x2 is 1, answer is 14. 14 is the right answer. Fine. Otherwise you can substitute in the given z.
तो आपका z कितना हो गया, z विल बी 10 प्लस 2, सॉरी 10/3, x2 will be 1, so 10 plus 4, 14 is the right answer. So second option is also cancelled. So C is the right answer. But फाइन, ये तो आंसर मिल गया। अब मैं इसको सोचता हूं कि अगर कोई और बच्चा किसको अलग तरह से सोचे तो कैसे सोचेगा। और अगर कोई सोचे कि सर मैं इस कांस्टेंट को और लास्ट वाले को ऐड कर दूं, देन दिस बिकम्स 3x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 14, और अगर मैं आप दोनों तरफ से ऐड कर दूं देन इट बिकम्स 14 प्लस 2x2। फाइन, देखिए थर्ड से तो आप 3x1 बना नहीं ना पाओगे आप, फाइन, क्योंकि ना तो 3 बना पा रहे हो ना 4 बना पा रहे हो। अब अगर कोई सोचे सर अगर मैं फर्स्ट को और इस दोनों को इक्वल करूं आपकी अप्रोच के साथ, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, अगर मैं इन दोनों को सेम करके x2 निकालता हूं तो x2 विल बी माई 2। फाइन, ये ऑप्टिमल होगा कि नहीं होगा, तो हम x1 निकाल लेते हैं पहले में से। व्हेन x2 इज इक्वल टू 2 इज अ 4, दैट विल बी 8/3, और सेकंड कांस्टेंट में से 10 5/3, देखिए ये दोनों सेम आए क्या, नहीं आए ना आपके पास, तो ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आप कहो कि सर मैं ये वाली लाइन को और इस लाइन को एक बराबर करके करता हूं, उसको भी करके देख लेते हैं, नो इश्यू। फाइन, आप कैसे मर्जी करिए बच्चे, अप्रोच विल बी अप्रोच। सो x2 कितना हो जाएगा आपका अभी, हाफ। फाइन, अगर x2 हाफ है देन वी विल सी वेदर द x1 आर सेम और नॉट। तो x1 पहले में से कितना हो गया, हाफ फिल करेंगे तो 11/3, और सेकंड में से इस 5/2, 15 minus 5/2 30, 25, 25/6, you can see again they are not same, तो ये भी नहीं होगा पॉसिबल। एक ही ऑप्शन बचेगा अगर आप इन दोनों को सेम करोगे, सॉल्व। फाइन, बिकॉज रिमेंबर इससे आप 3x1 प्लस 4x2 नहीं बना पाओगे, बिकॉज यहाँ तक तो ग्रेटर देन है पहली बात। सेकंड, जब आप मान लीजिए इसको लेस देन भी बना लेते हो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो आपका इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 बोथ आ जाएगा, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा ना, आपको एक एक वेरिएबल में बनेगा ही नहीं। फाइन, तो इसका मतलब एक ही सोल्यूशन बनेगा जो इससे मैंने सॉल्व करा आपके लिए, एंड दैट विल बी x1 x2 विल बी 1, और जब फिल करोगे यू विल गेट x2 इज 10/3। सो दैट इज माई ऑप्टिमल सोल्यूशन। फाइन, बच्चों मैं आपको दावे से कहता हूं अगर आपने ये वाला लेक्चर सुन लिया, इफ यू ऑलरेडी और इफ यू वॉच माई दिस लेक्चर, एक बार ये लेक्चर सुनिए, आप खुद कहेंगे सर वाओ, you can solve any LPP within the 15 second or within the 1 minute time period without using the graphical method। अगर कोई स्टूडेंट आपसे ये कहे या कोई भी कहे एग्जामिनेशन में कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, यू विल नीड एटलीस्ट 5 मिनट्स, लेकिन इतना समय नहीं है 5 मिनट्स एग्जामिनेशन में। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको आंसर 1 मिनट के अंदर देना है। फाइन, तो ग्राफिकल मेथड से आप कभी भी इसको सोल्यूशन को सॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास 15-20 मिनट है आपके पास, देन यू कैन डू दैट, फाइन, बट यू कैन सी माय अप्रोच इज ऑलवेज फिजिबल वन, एंड यू कैन वॉच एंड फॉलो माय प्लेलिस्ट। दिस लेक्चर इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। लेट मी नो आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अपलोड दैट सॉल्यूशन वेरी सून। टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like and comment on this video. Happy learning students always. Thanks for the watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. Best of luck students. Goodbye.